जिस मनुष्य के पास स्वास्थ्य नहीं तो समझो उसके पास सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड जय धन्वंतरी टू ऑल। वेलकम टू व्यूअर्स ऑफ एनालिटिकल आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल ऑफ प्रोफेसर आनंद चौधरी सर। कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, कभी डांटते हैं तो कभी प्यार जताते हैं, सही रास्तों पे हमें चलना सिखाते हैं। और जिन्होंने हमें ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया, जिन्होंने हमें ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया, हम उन्हें अपना गुरु नहीं, हम उन्हें अपना भगवान मानते हैं। भगवान, ये क्या है? आई वेलकम यू सर। आई डॉक्टर प्रीति टमटा, पीजी सेकेंड ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। As we talk about gut related disease yesterday, so now today I would like to know about disease dengue. So sir, taking without so much time, we are moving to our questions. Sir, my first question, I would like to ask you about the disease dengue. As we know that it is quite common right now, so how can we take precaution to avoid dengue, and in case if anyone get infected, what diet they can take to cure themselves? Thank you, Preeti, for your very encouraging start. But when you ask that, sir, can I speak something swasth? So I said, yes, you can. This is you all who have making all this YouTube channel interesting. But I was not knowing that you have a second poetry also regarding the myself. Okay, this is, I respect, this is my strength and the power. What you all, my co-learners, right from 2000, I start from there only. From the IPGTR Jamnagar to 2023, you all are my strength, and on basis of you all I am working, with your support I am working, and many more achievements what are in my credit. All achievements are you people, all co-learners from 2000 to 2023. The point is this, कि no one is Bhagwan in human form. Bhagwan is the only Bhagwan, right? Yes, it may be some higher degree of respect, but God is God, and no one is comparable to the God. So, taking pardon from the God, real God, I would like to start answer you. So, what is dengue and how it is being spread? Dear viewers, we have started this month of September with the nutritional support and the diet. Meanwhile, I got this purple book, very interesting. I'm aware about the purple book since its inception, and I'm discussing the issues in our routine PG and the doctorate classes. Sometimes even just for the name, for the sake of the name, and in the undergraduate too. But when I started detailing of this purple book, I could not resist myself that it should be elaborately present before the citizens of the country. I'm not saying before the Ayurvedists of the country, right? Before the citizens of the country. Because see, this is something normal and very common language it is given. There is no technical words कि one cannot understand all these. ऐसा इसमें कुछ भी विशेषज्ञ मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है इस किताब में, पर्पल बुक में, जिसको कि एक आम आदमी समझ न सके. तो इसलिए इस कंट्रीब्यूटर्स को, जो कल मैंने बात की थी कि ऑल 27 कंट्रीब्यूटर्स और जो भी इसका एडिटोरियल बोर्ड है, वो सब के सब बहुत बधाई के पात्र हैं, और स्पेसिफिकली FSSI. तो बात जब डेंगू की आ रही है तो इसमें बहुत छोटी सी बात कह सकते हैं कि जब थोड़ा सा इसके लिए पढ़ाई की गई तो समझ में आया कि ये वाली कहावत है कि पहले मुर्गी की पहले अंडा. मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेंगू जो फैल रहा है, वो जैसे कि आज तक फैसला नहीं हो आ पाया कि फर्स्ट एग और द फर्स्ट हैन, इन द सेम वे ये जो डेंगू फैल रहा है, ये जो मच्छर है जो मनुष्य को काटता है, जो इन्फेक्टेड मनुष्य है डेंगू से, उससे लेकर के
उस वेक्टर को ट्रांसफ़र करता है दूसरे मनुष्य को। तो ये जो मच्छर है इसका एक स्पेसिफिक ये फीमेल है और इट इज़ द फीमेल मॉस्किटो एडीज एजिफिल। It is specific, not all the normal mosquitoes. It is a specific mosquitoes which just took the this particular vector, and it is the 4 types. It is given den 1, den 2, den 3, den 4, and I'm not going to read one by one. Line by line. I shall read one line by line, but here just for a very common, more common language, it is like this. ये इन्फेक्टेड मनुष्य जो कि मच्छर से ही हुआ उससे ही लेकर के इस वेक्टर को दूसरे मनुष्य को देता है। तो अब इस झगड़े में क्या फंसना कि मच्छर ने पहुंचाया कि वो वेक्टर कहाँ से आया। तो लेकिन ये तय है कि एक मच्छर, वो भी मादा मच्छर के काटने से ये इन्फेक्शन फैलता है। और सबसे इसमें ख़ास बात ये है जानने की कि ये पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, मनुष्य से मनुष्य में नहीं स्प्रेड होता है। एक घर में अगर कोई डेंगू का बीमारी का डेंगू किसी को हो गया, डेंगी किसी को हो गया, तो वो दूसरे को तब तक नहीं होगा जब तक कि वो मच्छर न काटे। उसके साथ बैठने से, उसको खाना खिलाने से या उसकी सेवा शुश्रूषा करने से डेंगू परिवार में दूसरे लोगों को नहीं होगा। डेंगू एक परिवार में अगर एक व्यक्ति डेंगू से ग्रसित हो गया है तो दूसरे को तभी होगा जब उस व्यक्ति को जो मच्छर काटा है, वो भी ये वाला, सामान्य नहीं, ये मादा मच्छर एडीज जो है वो जब काटी हो, वो उसके बाद दूसरे को काट दे उसी परिवार में, तो डेंगू फैलता है। कहते हैं ना कि घर में 4 लोग डेंगू के मरीज हो गए, तो इसके पीछे ये कारण है। इसीलिए सबसे पहले एडवाइस की जाती है कि जिसको भी डेंगू हुआ है सबसे पहले उसको मच्छरदानी में रखो, क्योंकि उसके तक मच्छर नहीं पहुंचने चाहिए, क्योंकि वो मच्छर वहाँ पर काटेगा उसको, फिर उड़ करके फैमिली में दूसरे को काटेगा। और इनकी फ्लाइंग कैपेसिटी दी हुई है इस पर्पल बुक में, 400 मीटर लंबी फ्लाइट करता है ना। तो और हमेशा ये ह्यूमन हैबिटेट के पास रहने की कोशिश करती है। इसको मनुष्यों से बड़ा लगाव है, इस मच्छर को ऐसा लिखा गया है और ऐसा साबित किया जा रहा है कि मनुष्यों के समीप ही रहना चाहती है ये मच्छर जो है। तो अब प्रिवेंशन के तरीके हैं, इनके काटने पर ये 4 तरीके के है, और इनसे फीवर और भी इनके सिम्टम्स जो हैं अगर उन पर हम लोग बात करें तो इसके पहली हेडिंग जो इन्होंने दी है कि व्हाट इज़ डेंगू फीवर, इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि den 1, den 2, den 3, den 4, और बता रहे हैं कि 50 to 100 मिलियन पीपल को ऑल अक्रॉस वर्ल्ड है, और बहुत सारे देशों में तो डेंगी जून ही है, स्पेसिफिकली अफ्रीकन कंट्रीज़ में। तो ये इन चीज़ों का हमें ध्यान देना होगा। फिर हाउ इज़ डेंगी ट्रांसमिटेड, आई जस्ट डिस्कस विथ यू कि दिस वायरस इज़ जस्ट इन्फेक्टेड transmitted by this mosquito from human to human, and dengue never spread by one person to another person directly. So what yes, your next question. Thank you so much, sir, for your very easiest way of explanation. Thank you so much. My next question is, what patient take precaution during fever dengue? Yes, Dr. Preeti, पेशेंट को तो जो प्रिकॉशन लेनी ही लेनी है, फैमिली को भी कुछ पेशेंट के लिए करना होता है। उन सब चीज़ों को हम लोग इस पर्पल बुक के हिसाब से एक समराइज़ कर देते हैं, और वो ये किताब कहती है कि पेशेंट एडवाइज बेड रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट इज़ एडवाइज ड्यूरिंग द इलनेस फॉर क्विक रिकवरी, बेड रेस्ट, एडिक्वेट रेस्ट फॉर द क्विक रिकवरी, control the fever using prescribed medicines, sponge patient's skin with the cool water if fever stays high, prevent dehydration which occurs when a person loses too much fluid from high fever or vomiting or poor oral intake, give plenty of fluids and watch for signs of dehydration,
टेक द पेशेंट टू द क्लिनिक और इमरजेंसी रूम इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अगर ये लक्षण आ रहे हो, देखिए सबसे पहली बात है आराम। आराम बहुत ज़रूरी है इस केस में, और हमेशा ये चेक करना कि डिहाइड्रेशन ना हो, और फीवर की कोई भी दवा इसमें नहीं चलानी चाहिए। हम किसी दवा का नाम भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक अवेयरनेस की प्रोग्राम है। दवा के लिए आपको किसी भी पद्धति के रजिस्टर्ड चिकित्सक के पास जाइए, जहां आपका विश्वास जमता हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ आयुर्वेद के पास आइए, या सिर्फ एलोपैथ के पास जाइए, या यूनानी के पास मत जाइए, या होम्योपैथी के पास मत जाइए, नहीं। आपका जिस पैथी पर विश्वास हो उसके पास जाइए, और हर पैथी में इसकी चिकित्सा है। हर पैथी में चिकित्सक मौजूद हैं और इस काम को करेंगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है यहाँ पर कि फीवर को कंट्रोल करना है, हर हाल में फीवर को कंट्रोल करना है, ठीक। अब उसको कंट्रोल करने के मेथड्स हमारे पास जो हैं वो चिकित्सक महोदय बताएंगे, जिनके पास आप जाएंगे। फिर ये कहते हैं कि अस्पताल कब लेके चलना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। बात करते हैं ये कि अगर पेशाब में कमी हो रही हो, डिक्रीज इन यूरिनेशन, अगर बच्चा रो रहा हो लेकिन उसकी आंख में आंसू ना आ रहा हो, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ चाइल्ड इज़ क्राइंग बट विदाउट टीयर, ये भी ध्यान रखना होगा। अगर मुंह सूख रहा हो लगातार, ड्राई माउथ, टंग और लिप्स, देन आंख धस गई हो, sunken eyes, then listless or the overly agitated or confused, बेचैनी में व्यक्ति हो, फास्ट हार्ट बीट 100 से ज़्यादा हो गई हो, और हाथ पांव उसके ठंडे हो रहे हों, और उसका जो है, अगर बच्चे को अगर डेंगू हुआ है तो अगर बिल्कुल बच्चा शांत होने की स्थिति में आ रहा हो, उसकी एक्टिविटीज़ कम हो रही हो, संकीर्ण वर्ड है यहाँ पे, तो आपको बिना देर किए चिकित्सक के पास जाना चाहिए। फिर एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ये कि जिस पर हम बात कर चुके हैं कि प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डेंगू विथ योर हाउस, प्लेस पेशेंट अंडर बेड नेट और यूज इंसेक्ट रिपेलेंट्स ऑन द पेशेंट while they have a fever. Mosquito that bite the patient can go on to the bite and infect others in a family. So there is a just need to keep that patient in isolation. अब जब बात की बात आ रही है और चिकित्सक की बात आ रही है, तो यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि CCRS अपनी रिसर्च यूनिट और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिसर्च यूनिट, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए बेलागावी में है कर्नाटक में, both are working hard to give a breakthrough for a drug of the dengue. And back 2 years, they were near to just announce that now it will be in the market by the technology transfer. So a specific drug for the dengue is in the market, and this is a good news. Vaccine to prevent dengue is also usual. The word in the government is in the pipeline, huh? So it is in the pipeline, but that length of the pipeline is not much longer. The Pune based institutes and their CEO are now claiming that in the just coming month, they are not saying years, in the coming month they are going to fill the gap or break the news that this is the vaccine to check dengue. And that will be the global thing. See what India did into the pandemic, Corona. Simply when it started, we were vaccineless. We were not producing any mask. We were not producing anything, even that amount of the ventilators. But India did everything. Everything. We produced masks. We produced all the kinds of sanitizer. We produced all high level of the ventilators. And of course the vaccine, not one, but of the two variety.
right? So dengue may be controlled by the vaccine which is into the market, will be in the market. And the specific drug is also not available all over globe. There is only symptomatic treatment, and that is of the fever. But the complications are very much there, and the symptomatic treatment is going on. But the ICMR Belagavi unit and the CCRS, they are also very much near to break this news that this is the specific medicine which may control, which may manage all symptoms of the dengue fever up to the platelet, right? So it's a good news for our viewers. Next, please. So next question is, what should the behavior of patient after fever? Yes, this is also very important. बुखार उतर गया, चल दिए काम पे, गलत. You have to take rest, and the absolute rest for the recovery, because this virus is very dangerous. Acute condition, fever down, it never means you are okay. Just take rest. Approximate rest is must here. And see, this book is advising, watch for warning signs as temperature declines 3 to 7 days after symptoms begin. Return immediately to doctor if any one of the following warning signs appear. 3 से 7 दिन तो आप आराम करिए, लेकिन अगर 7 दिन के बाद इनमें से कोई सा भी लक्षण दिखाई देता है तो तुरंत वापस क्लिनिक में जाइए और वो लक्षण ध्यान से सुनिए. शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ with activity or at rest, severe abdominal pain or the persistent vomiting, red spot or patches on the skin, bleedings from nose or gums, vomiting blood, black fiery stool, drowsiness or just irritability, pale, cold or clammy skin, and difficulty in the breathing. See, all symptoms, just analyze. If you are Ayurvedist or medical listening, this just analyze. ये सब कुछ जितने भी ये 7-8 लक्षण दिए हुए हैं, सब एक ही जगह से जाके जुड़ते हैं. ब्लीडिंग ऑफ द ब्लड, स्टूल काला हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है नोज से, गम से, आपके रेड पैचेज स्किन पर आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, ये सब कहाँ जुड़ रहा है? बोन मैरो पे. वो बोन मैरो जहाँ से आपका फॉर्मेशन होता है प्लेटलेट का प्लस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सबका. तो ये सारे लक्षण उसी के हैं. और रेस्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. आपकी अनुमति से मैं अपना एक व्यक्तिगत बात इसमें बता दूं तो डायबिटीज़ तो हमको बहुत पुरानी है और स्ट्रेस इंड्यूस्ड है. और स्ट्रेस भी बस एकेडमिया का इंड्यूस्ड स्ट्रेस, एडमिनिस्ट्रेशन का भी स्ट्रेस, वर्क कल्चर, वर्क प्लेस का स्ट्रेस, ये तमाम. चलिए, वर्क कल्चर का भी स्ट्रेस, क्योंकि हम चाहते हैं कि परफेक्शन में काम हो, अगला नहीं कर रहा है तो वर्क प्लेस का स्ट्रेस हो गया ना, वर्क कल्चर का स्ट्रेस हो गया. और वर्क प्लेस पर तो अब कुछ कहना ही क्या है. तो हमें भी डेंगू हुआ सितंबर 21 में. हमको पूरी एडवाइस दी जा रही थी कि रेस्ट करिए, लेकिन उस समय मैं BHU के एक बड़ी टॉप मोस्ट पोजीशन पर काम कर रहा था. मुझे अवसर मिला था मालवीय जी महाराज की कृपा से. मैं चीफ प्रॉक्टर था यूनिवर्सिटी का. दैट इज़ वेरी टफ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब. तो मेरे सहयोगी काम देख रहे थे, क्योंकि पूरी अच्छी टीम होती है इसमें. आपको पता है 900 personnel are deputed for this. All are the retired persons from the army. Then about 30 security officers and about 40-45, I mean supervisors, higher rank of the JCO. And then 20 to 25 teachers in the different ranks, proctor, deputy chief proctors, as per the faculty representation. So all are working
तभी एक हॉस्टल में कुछ बहुत विशिष्ट घटना हो गई जो कभी कभी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में होती है, बॉम्ब, गोलीबारी, हाँ ये सब भी हुआ करता है। तो मुझे रात को 1 बजे आना पड़ा ग्राउंड पे, आई मीन ग्राउंड जीरो, जिस हॉस्टल के बीच में बमबारी हो रही थी, दोनों के बीच में। होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, हर तरीके का उद्देश्य होता है लोगों का। तो मुझे आना पड़ा क्योंकि सिचुएशन डिमांड लाइक दिस, और मैं घर में नहीं बैठ सकता था। मेरे सहयोगी डीसीपीज कह रहे थे कि नहीं आप रहिए सर, आप बीमार हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे आना होगा। मैं आया, रोड पे खड़ा हुआ, सिर्फ पूरा प्रशासन आया। पूरे प्रशासन से मेरा मतलब है कि कमिश्नर ऑफ पुलिस को छोड़ के सभी लोग आ गए। और कमिश्नर साहब तो सुबह 7 बजे फ़ोन उनका आया, उन्होंने कहा कि मेरे फ़ोन से ही जगे हो ना, रात को 2 बजे तक वहाँ थे आप। हमने कहा हाँ सर, आपके फ़ोन से ही जग रहा हूँ। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, कोई आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ इतना कि वो डेंगू में रेस्ट न लेना मेरे लिए इतना घातक हुआ, इतना घातक हुआ कि मुझे सब काम छोड़ना पड़ा और खाली रेस्ट लेना पड़ा महीनों। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ, अगर मैं वो 5 दिन निकाल दिया होता, रोड पे नहीं आया होता, मुझे कहने में भी बड़ी झिझक लग रही है कि हम रोड पर आकर के खड़े हो गए बीइंग चीफ प्रॉक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी, और हॉस्टल के वार्डन्स लोग दूर भागते रहे। लेकिन हमारी टीम खड़ी हो गई, हमारे डीसीपी आ गए, हमारे प्रॉक्टर्स आ गए, वो भी टीचर्स हैं, हमारे पूरी फोर्स हमारे साथ थी जो यूनिवर्सिटी के सिस्टम में है। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा आ गया, लेकिन कुछ लोग गायब थे, नदारत थे, जो कि पहले नंबर पर जिम्मेदार हैं उस यूनिट की शांति व्यवस्था के लिए। अब समझ सकते हैं आप कौन। एनीहाउ, तो वो आराम न करना मुझे बहुत घातक हुआ, इसलिए मैं इस अनुभव को शेयर कर रहा हूँ आपसे। कोई भी डेंगू का व्यक्ति हो, कुछ भी काम गड़बड़ हो रहा हो, पूरा 1 हफ्ते रेस्ट लीजिए। अभी भी लोगों को होता है, हमारे आस पड़ोस में हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स को हुआ है, हमारे एक MD फर्स्ट ईयर को हुआ है। हम उसको डिपार्टमेंट आने से मना करते हैं कि नहीं, टेक रेस्ट फॉर फुल 1 वीक, इवन आफ्टर द डाउन फीवर गेटिंग डाउन। क्योंकि वो होता है ना कि दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक के पीता है। तो इस डेंगू प्लस डायबिटीज़ ये डिजिट रिजल्ट रहा पर्सनली मेरे लिए। और वो आराम न करना उन 4-5 दिनों में, फिर उसके बाद फिर कानूनी प्रक्रियाएं शुरू हो गई, मुझे ऑफिस लगातार काम करना पड़ा। तो वो मुझे इतना घातक हुआ कि आई रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द चीफ प्रॉक्टर। आई वॉज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटी एंड देन went to the Hassan for my rejuvenation, SDM college. I stayed there 21 days to get my energy back. And thanks to the Professor P.N. Rao and his team, they successfully accomplished the task and they make me stand again with all others friends too. I shall talk about them later. So dengue required rest, and rest is must. Next, please. So my next question is, what are the dietary guidelines of dengue? Yes, dietary guidelines. Because this purple book is for the dietary guidelines in a specific disease. So here, just I shall take each and everything. Our body requires sufficient dietary guidelines as per the purple book. Our body requires sufficient vitamin, mineral, and protein for bone marrow. For bone marrow health, which produces platelets. Vegetables such as spinach, pumpkin, and paprika, carrot, watermelon, celery, broccoli, and the best root beetroot will trigger your प्लेटलेट लेवल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग कीवी खाओ, कीवी 600 रुपये केजी कीवी खाओ एक, उससे प्लेटलेट बढ़ेगी। नहीं, देखिए तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। यहाँ बताई जा रही हैं आप ब्रोकोली खाइए, बीटरूट खाइए, कैरेट खाइए, वाटर क्रेस खाइए, सिलरी खाइए, पंपकिन खाइए, पपीका खाइए, स्पाइनच खाइए। ये सब प्लेटलेट्स भी बढ़ा रही हैं। तो हम लोग किसी चीज़ के पीछे दौड़ने भागने लगते हैं। बकरी का दूध पियो, मैं पूरा पढ़ गया इसको तैयारी में आपसे बोलने के लिए, कहीं इसमें बकरी के दूध का नाम नहीं आया, कहीं बकरी के दूध के ऊपर मुझे बहुत कोई एविडेंस्ड पेपर भी नहीं मिला। लेकिन आप जान रहे हैं इसमें बकरी का दूध गाय के दूध से 10 गुना महंगा है। 500 रुपीज़ लीटर भी नहीं मिल रहा है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं। हाँ,
क्यों प्रीति, डॉक्टर प्रीति? तो ऐसा नहीं है, अब कीवी खाना ही है, ये ठीक है, कुछ फ़ायदा करेगा, लेकिन जो काम कीवी से हो रहा है वो पालक से भी तो हो जा रहा है, जो काम कीवी से होगा वो कद्दू से भी तो हो जा रहा है। और ये गाइडलाइंस किसी छोटे मोटे लोगों ने तो नहीं बनाई है, बहुत भारी भारी लोग हैं, पर्पल बुक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से और FSSAI से है, तो इसको विश्वास करना चाहिए। देन हैव ए सॉफ्ट बैलेंस डाइट, वो तो हर बीमारी में है, कम खाइए, सॉफ्ट बैलेंस डाइट खाइए। इंक्लूड इजी डाइजेस्ट फूड्स लाइक बॉइल्ड वेजिटेबल्स, सॉफ्ट खिचड़ी, बटर मिल्क, प्रोबायोटिक कर्ड एंड सोप्स। बताइए, ये इतना आसान चीज़ें बताई जा रही हैं डाइटरी के लिए, और बताइए हम लोग क्या क्या करते हैं? बस सिंपल बॉइल्ड रखना है, खिचड़ी लेनी है। देन ईट स्मॉल, छोटा छोटा खाइए। फ्रीक्वेंट मील्स एज मे नॉट बी एबल टू ईट टू मच, एक बार में ज़्यादा नहीं खाइए, थोड़ा छोटा छोटा खाइए। ड्रिंक एडिकेट फ्रूट्स, अब देखिए इसी में मैं बकरी के दूध का नाम ढूंढ रहा था कि शायद कहीं मिल्क का नाम आ जाए, नहीं मिला मुझे। क्या मिला? ड्रिंक एडिक्वेट फ्रूट्स लाइक कोकोनट वाटर, लेमन जूस, फ्रूट जूसेस, बस इतनी ही चीज़ें। कोकोनट वाटर है, लेमन जूस है, नींबू पानी और फलों का जूस। लेकिन हाँ, आगे दिया हुआ है कि जो बहुत रिच कार्बोहाइड्रेट वाले हैं उनको नहीं लेना है। ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन एंड सूप टू कीप यू हाइड्रेटेड एंड फ्लश आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, ये भी बहुत ज़रूरी है ना, फ्लश आउट टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी, और इसलिए ये कोकोनट वाटर लेना चाहिए। हाँ, अब वो आ गया जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान है, वो है पपाया लीफ जूस एंड ड्रैगन फ्रूट इज नोन टू इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ये एस्टेब्लिश्ड है कि पपाया लीफ जूस एंड ड्रैगन फ्रूट इज नोन टू इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। और जिसकी मैं बात कर रहा था, ICMR की बेलागावी यूनिट और CCRS के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें पपाया लीफ का बहुत बढ़िया उपयोग है। और 2-3 कंपनियां, मॉडर्न की, एक कंपनी आयुर्वेद की, ये सब पपाया के साथ मार्केट में हैं। मैं फिर से नाम लेने से बच रहा हूँ कि कोई भी चीज़ बिना एक फिजिशियन, क्वालिफाइड फिजिशियन के एडवाइस के नहीं लेनी है, नहीं बोलना है। डाइटरी वाली पार्ट पे ही हम खाली आपसे डिस्कस कर रहे हैं। देन क्योंकि हर व्यक्ति की अवस्था अलग अलग है और उसको कोई भी एक यूनिवर्सल दवाई नहीं काम करती है। तो आपने देखा है कोरोना में। तो इंक्लूड इम्यून बूस्टिंग फूड्स लाइक जिंजर, गार्लिक, सिनेमन एंड गूजबेरी। इम्यूनिटी बढ़ाने पर ज़्यादा जोर है तो ऐसे खाना खाना चाहिए। तो देखिए, जिंजर है, गार्लिक है, सिनेमन है, गूजबेरीज है। इंक्लूड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक पम्पकिन, अब तो कद्दू का भाव बहुत ही बढ़ रहा है। बेल पेपर्स, कैरेट्स, टोमेटोज, पपाया विच आर रिच इन एंटीऑक्सीडेंट एंड बूस्ट इम्यूनिटी। कलरफुल, पपाया का कलर बाहर से अंदर से हरा और पीला, कलरफुल। पम्पकिन, कैरेट्स, इंक्लूड फूड रिच इन विटामिन C। ये मुझे एक अच्छी जानकारी लगी। विटामिन C रिच फ्रूट्स देने हैं, ऑरेंज देना है, स्वीट लाइन देना है, लेमन देना है, गूजबेरी देना है, ये सब काम करने हैं। देन फूड रिच इन द जिंक, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है। फूड रिच इन द जिंक, नट्स विच ग्रेन्स, लेगूम्स, डेयरी प्रोडक्ट ऑल्सो हेल्प बूस्ट इम्यूनिटी, इम्यून के लिए है। सिप वार्म सूप, गार्लिक, पेपर, जिंजर, cumin seeds, turmeric, lemongrass, basil and coriander should be used in cooking as they help enhance digestion and improve immunity। मैं इस लाइन को फिर से पढ़ता हूँ आपकी अनुमति से। देखिए, यही चीज़ तो है ना भारतीयता में, यही मसाले ना घर में यूज होते हैं, इन्हीं को यूज करने के लिए फिर ये बोलते हैं गार्लिक, पेपर, जिंजर, हींग, cumin seed, turmeric, lemongrass, basil and coriander should be used in cooking। कुछ भी आप बना रहे हो, ऊपर जो दिया गया सॉफ्ट बैलेंस डाइट फूड, खिचड़ी, सब में ये चीज़ें एक बैलेंस अनुपात में डालिए एंड दैट दे हेल्प इंजेशन, इनहेंस डाइजेशन एंड इम्यूनिटी। एनीथिंग मोर? Yes, sir. So my next question is, any specific food recommendation for dengue? Again, I am taking the help of the purple book.
and these advices are really very significant because they are by the expert of the field. Okay, so here they are talking about the papaya leaves, and हम जिसके यहाँ भी पपाया है वो तो एकदम डोनर ही हो जाता है कि हाँ हमारे यहाँ आइए आप ले जाइए. तो दे आर सेइंग फर्स्ट स्पेसिफिकली इसमें फॉर द डेंगी पपाया लीव्स इज द ऑलमोस्ट नंबर 1. द एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स ऑफ द papaya is being studied, कुछ इन्होंने रेफरेंस दिए हैं, is being studied as a complementary treatment for disorders of the platelet function. Just crush the papaya leaves and squeeze them to extract the juice. Its extract increases platelet count to a greater extent. Alternatively, you can also boil the papaya leaves in water and drink the solution. It is possible the best होम रेमेडी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डेंगू फीवर. कितना अच्छा लगा. आप दोनों तरीके से पपाया के लीव्स बना सकते हैं. जूस, ग्रीन पपाया पत्ती, पपीते की पत्ती लीजिए, क्रश करिए, स्क्वीज कर लीजिए, या पपीते की पत्ती को उबालिए और उसको फिल्टर कर लीजिए. उबालने में रेशियो का ध्यान रखिएगा, 1:4 का ही होना चाहिए. और इस पर स्टडीड है ये, और मैं आपको इशारा भी कर रहा हूँ कि ICMR की बेलागावी यूनिट ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो है और CCRS ये पपाया से ही संबंधित कुछ दवाइयाँ लेके आ रहे हैं. फिर इन्होंने जो बात की अगला स्पेसिफिक जिस पर कि जनता कम जानती है, ग्रीन कोकोनट वाटर. पपीते के दूध, पपीते की पत्ती के पीछे तो लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट लोग बकरी के दूध पर जाते हैं, वो उसमें नहीं लिखा हुआ है कहीं भी. ग्रीन कोकोनट वाटर है, एलोवेरा है. एलोवेरा के लिए ग्रीन कोकोनट वाटर में ये बोलते हैं कि दिस पॉपुलर ड्रिंक इज़ हाईली इफेक्टिव टू रेज प्लेटलेट लेवल. कोकोनट वाटर प्रोवाइड्स not only vitamin A, B and C but also has minerals, calcium, potassium, magnesium and iron and the phosphorus. एलोवेरा के कहते हैं कि एलोवेरा रिच इन द न्यूट्रिएंट्स सच एज द कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सोडियम, कॉपर, vitamin C, E, B. Therefore, aloe vera juice has multiple medicinal applications. It can be an excellent ally in taking care of the cardiovascular health and promoting platelet production. एलोवेरा जूस आज तक मैंने नहीं सुना था, इसलिए मैं पर्पल बुक को धन्यवाद दे रहा हूँ. बहुत सारी चीज़ें हम लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उसको स्वीकार करना चाहिए. मैंने कभी नहीं ये सुना था अभी कि एलोवेरा का भी जूस इसमें दिया जाना चाहिए डेंगू के मरीज़ में. तो एलोवेरा का भी मरीज़ का ये तो डबल प्रॉफिट है यहाँ पर. तो ये कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी दे रहा है और प्लेटलेट काउंट भी कर रहा है. फिर ये योगर्ट की बात करते हैं, मट्ठे की. प्रोबायोटिक्स आल्सो नोन एज द एक्टिव बैक्टीरिया आर फाउंड largely in yogurt and they are very useful for keeping the intestine free of the harmful germs and bacteria that are the capable of causing diseases, and its regular consumptions will help you to keep the defenses high. डिफेंस वर्ड यूज़ हो रहा है. देखिए मैंने कहा ना कि इन्होंने मेडिकल टर्मिनोलॉजी को अवॉइड करके आम भाषा को ज़्यादा यूज़ किया है कि आपको योगर्ट का भी सेवन करना चाहिए. और जो लोग नॉन वेज वाले हैं, लोग बहुत वेगान की बात हो रही थे कि सब लोग वेगान जा रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं आप चिकन सूप भी ले सकते हैं. चिकन सूप लेना चाहिए. मुझे याद है मेरे बड़े अच्छे सीनियर हैं यहाँ पर, शल्य विभाग में हेड रहे हैं, वो जब आए विजिट करने मेरी बीमारी में और जब उनको मैंने बताया कि ये डेंगू और डायबिटीज़ का कमाल है, तो उन्होंने कहा कि वेज खाते हो कि नॉन वेज खाते हो. मैंने कहा कि चलता है, सब चलता है मुझे. उन्होंने कहा चिकन सूप पियो. तो ये भी इसमें इन्होंने चिकन सूप की बात की है कि देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस दैट सपोर्ट दैट चिकन सूप इज़ ऑफ ग्रेट हेल्प टू स्टॉप द सिम्टम्स ऑफ द colds and flu and stimulating the defense of the healing carried out quickly. It will also help you stay hydrated and raise the temperature of the airways, which is very effective in loosening the mucus. लेकिन ये बात वहाँ पर आ गई है जहाँ पर कि डेंगू फीवर के साथ कफ एंड कोल्ड भी हो रहा हो और उसमें आप परेशान हो, तो वहाँ चिकन सूप ये बता रहे हैं कि ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा.
प्लेटलेट के ऊपर इसमें कहीं चर्चा नहीं की गई है कि चिकन सूप प्लेटलेट्स के ऊपर भी किसी तरीके का इफेक्ट डाल रहा है। हाँ, वो सपोर्टिव है आपके टेम्परेचर मेंटेनेंस में, तो ये ध्यान रखना होगा। और देखिए, इतने बड़े वरिष्ठ वैज्ञानिकों की समिति ने बकरी के दूध का नाम नहीं लिया है, तो ये पागलपन बकरी के दूध वाला छोड़ा जाए। पपीते का जूस, एलोवेरा जूस, कोकोनट वाटर, मट्ठा, ये 4 चीज़ें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और डेंगू आपसे परास्त हो जाएगा। और तब और परास्त हो जाएगा जब आप आराम फरमाएंगे, है ना। आराम करना बहुत ज़रूरी है इसमें। दुनिया की चिंता छोड़, अब तो प्रीति ही कुछ बोल सकती हैं इस तरीके के उर्दू के नज़्में जो हैं कि कैसे आराम करना चाहिए। हाँ, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चल। नहीं, मैं स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं खुद करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ आप ऐसा सोच सकते हैं कि आराम फरमाइए। अगर डेंगू हो जाता है तो चिंता छोड़िए, आराम करिए, आप जल्दी स्वस्थ होंगे। अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उसके स्वास्थ्य की शुभकामना। और इस किताब को तो हम लोग आपके समक्ष हमेशा लाते रहेंगे। यस मैडम। Thank you so much, sir. It was a very great and wonderful discussion today. You shared so much informative information and which are very beneficial for everyone. So, in our next video, we will discuss about worldly spread disease, cancer. Yes, we will discuss about the specifically dietary guidelines of the cancer as per the Purple Book. It may be somewhere in the month of October. We are sorry to make you wait, but the prior schedules for other in the month of September we had fixed, and we are making the videos for all that. So wait for the cancer and the specifically dietary. This Purple Book will be in our routine one Sunday every month till this book is completed. Thank you for your support. Be with us. Namaste. हम दोनों की तरफ से आप सबका अभिवादन। हमारे टीम को भी आप लोग आशीर्वाद देते रहिए। धन्यवाद।